Okay, can you see the screen? Yes, sir. Okay, so I'm repeating the topics which I told you to read yourself. Okay, because your marks I have seen are very poor actually, not good. Maximum is I think 10 or 12 in your class test. Okay, reversible work by an open system exchanging heat only with the surroundings. Now this topic you read earlier also, but now I am explaining it once again. So what you can see on the right hand side here is, here you have the uh, you can say open system in which there is certain mass dm1 which is entering, and along with it we have enthalpy, kinetic energy and potential energy which is entering into this system. If we talk about the system itself, the control volume inside, this is its change in energy. Actually this change in energy will occur over a period of time actually. Okay, then we have this as the energy which is leaving the control volume. This is the heat which is entering into the control volume at temperature T. So let us read it one by one. Let us consider an open system exchanging energy only with the surrounding. Okay, so we have a open system exchanging energy only with the surroundings at constant temperature T naught. So this is the constant temperature T naught. This is the temperature of the surrounding, and at constant pressure T naught. A mass dm1 enters the state at point number 1. A mass dm2 leaves the system at state 2, and an amount equal to, this is actually delta q, okay, is absorbed by the system, and an amount equal to delta w is delivered by the system, and the energy of the system or control volume changes by an amount dE sigma. Sigma here shows the control volume. Okay, so you should be clear about the terminology first of all. Okay, here you can say Cs sigma. So this is the control surface of the control volume, and this is the control volume. So these are the various uh, terminology which we are using. Surroundings you can see is at temperature, pressure P naught and temperature T naught. Okay. So what we can do is we can apply the first law of thermodynamics to it. Now let us see what are the energies which are entering into the system. So if you will see that first of all we have delta Q which is entering. Then this is what is entering. Besides it, do we have anything that is entering? I think there is nothing else which is entering. So yeah, okay. So dq plus dm into h1 plus v1 square plus gz1. So it is kinetic energy, potential energy, and enthalpy, which is entering with the mass dm1. Okay. Now, what is the energy that is leaving actually? The energy that is leaving is uh, just a minute. This is the energy which is leaving, one part, and the second part that is leaving is delta W. Yes, this is delta W. So this one and this one, these are the two things that are leaving actually. So we're subtracting it because it's leaving, or we can take it on the right hand side also. Okay, so dm2 into enthalpy change, enthalpy at outlet into kinetic energy and then potential energy. These are the three terms, minus delta W because it is leaving the system. Okay, see, this is energy is entering and energy is leaving actually. We have taken a difference of that. Now this difference which is entering and leaving, what it will do? It will cause a change in energy of the control volume. Okay, because there is a possibility that the mass which is entering may be less, the mass which is leaving may be more, or vice versa also. Okay, so that will cause a change in the uh, energy of the control volume. So that change in energy of the control volume is given by this term, which is derivative of u
plus kinetic energy term plus this is potential energy term. So that is equal to change in the energy which is entering and leaving. Okay, so this term, that is how this is basically we have applied the first law of thermodynamics, and we are calculating the reversible work by an open system exchanging heat only with the surrounding. Now there is one more thing, delta Q. Here we have written now this delta Q is entering at a temperature T. This is the temperature T, as you can see. Okay, this is the temperature T. Now what we have to do is we want that this heat should be transferred reversibly. So what we can do is we can employ a engine here. This is a reversible heat engine, and this is the amount of the heat delta Q which is coming from temperature T naught. So let us move to the next slide. This diagram is on the next slide also. So you can see here. Okay. Now let us first of all read the lines here. For the maximum work, the process must be reversible. Okay. That is, there is a temperature difference between the control volume and the surrounding. Okay. Here you can see the temperature of the control volume is T, where the surrounding is at temperature T naught. So you know when there is a temperature difference between the surroundings and the control volume, in that particular case, uh, there will be there will be irreversibility due to finite temperature difference. So we have to remove that. To make the heat transfer process reversible, let us assume a reversible heat engine E operating between the two. Between the two means between T and T naught. Okay, so this is the amount of the heat which is coming from the uh, atmosphere, and this is the amount of heat delta Q which is going to the control volume. Okay, so it is assumed that the heat transfer occurs at the points of the control volume sigma, control surface sigma, where the temperature is T. Okay, otherwise the control volume may be at different point, different temperature at different points actually. That you have to keep in mind. Thus, in an infinitesimal reversible process, an amount delta Q naught is absorbed by the engine E from the surroundings at temperature T naught, and an amount delta Q is rejected by the engine reversibly to the system where the temperature is T. Okay, so this is basically we are considering it as a reversible heat engine. So for a reversible heat engine, what you can do? So we have here the temperature as T naught. This is delta Q naught, and here we have the reversible heat engine, and this is delta Q, which is going to the control volume. Okay, this heat is entering into the control volume. So because it's a reversible heat engine, we can always say delta Q naught upon T naught is equal to delta Q divided by T. Okay, this is from the Carnot's theorem actually. So now if you have to calculate the value of delta WC, now this is the delta WC, this value. Okay, so it will be equal to what? This delta WC is equal to delta Q minus this delta Q naught by minus delta Q. So this is what is written here, delta Q naught minus delta Q. And actually we have to write the final expression in the terms of delta Q. So what we will do, we will remove this delta Q naught. We want to calculate the value of this delta Q naught. Okay, and from this particular equation, delta Q naught is equal to delta Q into T naught divided by T. So this is how we have written it here, minus delta Q. And then we can take the delta Q as common, and we get this particular value of delta WC. So this is the work which is coming from the heat engine. I hope this is clear to you. Okay. Now delta WC is always positive. Now see, there was a question I think in the class test also, when you were asking that why the available energy is there when the temperature of the system is uh, lower than that of the surrounding. So it is clear from here what are the various lines which are written here. The work delta WC is always positive. Okay, this delta WC is always positive and is independent of the direction of the heat flow. When T naught is greater than T, so it means the control volume is at a lower temperature. So T is less than T naught.
So what we have done, we have used a reversible heat engine here, and what you can see here is we are getting the positive work output. So this is nothing but the available energy, and here the surroundings are at higher temperature, whereas the control volume is at lower temperature. So heat will flow from surroundings to the system. Delta Q is positive, okay, because it is entering into the control volume. So you can see the diagram here. Delta Q is positive, and hence delta WC in equation will be positive. Equation means which the equation which we have seen in the last slide. This value, okay, this value of delta WC, this is positive, okay, because the value of Q is positive. So this delta Q is positive, and if you will see, this is positive, and T naught is greater than T. T naught is greater than T. So this expression in bracket will also be greater than 1. Sorry, this will be positive. So positive into positive, positive. So we are getting the positive one. Again, when T naught is less than T. Okay, now we are taking another scenario when T naught is less than T. T naught is less than T. So what will happen? The heat will flow from the system to the surrounding. Delta Q is negative. Now the value of delta Q, this term will be negative because the heat is going out of the system, and hence, okay, delta WC will be positive. Why delta WC will be positive? Because now the value of T naught is less than T. So both negative and negative will become positive actually. See, you have to remember the value delta WC is given by uh, delta Q into T naught divided by T minus 1. So you just see this expression. If delta Q is negative, means this term is negative. And if T naught is less than T, okay, T naught is less than T, so the ratio T naught by T will be less than 1. So the term in the bracket, this term will be negative. So negative and negative will make delta WC as positive. So delta WC in this particular case will also be positive. Okay. Now since the process is reversible, the entropy change of the system will be equal to the net entropy transfer and entropy generation, which is 0 in this particular case because it is happening reversibly. And therefore, now this ds, now this is for this control volume. Ds sigma, entropy change of the control volume, is equal to entropy transfer with heat, which is delta Q by T, plus entropy which is entering with the mass here. So it is dm1 s1. This is entering, and dm2 s2. This is leaving. dm2 s2. This is leaving. So this is the value of entropy change of the control volume. So यहाँ से हमें control volume का entropy change मिल गया. So what we are doing next? We are calculating the value of delta Q by T. This is what we have calculated. Okay. Now let us see it here. So what is the topic of this presentation? This is reversible work by an open system exchanging heat only with the surrounding. सिर्फ सराउंडिंग के साथ हीट ट्रांसफर हो रहा है और कोई रिजर्वायर नहीं है, सिर्फ सराउंडिंग है. तो एक तो ये इक्वेशन हमें याद रखनी है, ये वाली, क्योंकि इसी इक्वेशन के थ्रू हमने जो है फाइनल एक्सप्रेशन तक पहुंचना है. ओके. तो मैक्सिमम वर्क की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वर्क की वैल्यू क्या है? डेल्टा डब्ल्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू रिवर्सिबल. सो मैक्सिमम वर्क इज रिवर्सिबल एंड इट इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, जो कि कंट्रोल वॉल्यूम से मिला था, और दूसरा ये जो वर्क है ये जो हमें रिवर्सिबल हीट इंजन से मिल रहा है, जो कि जिसकी हेल्प से सराउंडिंग्स और कंट्रोल वॉल्यूम में इंटरेक्शन हो रहा है. सो बेसिकली दीज आर द टू वर्क्स. और अगर हम देखें तो डी डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू मैक्सिमम, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? एक तो डेल्टा डब्ल्यू है जो कि कंट्रोल वॉल्यूम से मिल रहा था हमें. दिस इज एक्चुअली one work is delta W and another work is which we are getting from the reversible heat engine here. Okay, delta WC. So we are adding both these work because this is the reversible work, and the value of this work delta WC we have just calculated. This value is equal to delta Q T naught over T minus 1. Okay, तो अब हमने क्या किया? हमने
डेल्टा डब्ल्यू मैक्सिमम की जब वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हम डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू पुट करते हैं। तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आप देखो पीछे क्या थी, ये डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू है। अगर हम यहाँ से इक्वेशन से डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी हमारे पास, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल डेल क्यू प्लस डी एम वन इंटू एच वन प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू प्लस जी जेड वन माइनस दिस वैल्यू एंड माइनस दिस टर्म विल गो इन माइनस this change in the energy of the control volume. So delta W is equal to delta Q plus energy which is entering with dm1 minus energy which is leaving the control volume, and this is the change in energy of the control volume. These are the four terms which are representing the value of delta W. These four terms are representing the value of delta W, and this term is representing the value of डेल्टा डब्ल्यू सी, दिस वैल्यू। ओके, ये हमारे पास आ गई। तो अब इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद थोड़ा सा इधर उधर चेंज किया है। जैसे अगर आप अपनी अगली लाइन में देखोगे तो अब हमारे पास अगर ये देखो इस टर्म डेल्टा क्यू ये -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा क्यू की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, और ये स्टार्टिंग में एक डेल्टा क्यू की वैल्यू ये वाली और ये वैल्यू, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म 1 2 3 एंड दिस टर्म, चार टर्म रह जाएंगी, एक डेल्टा क्यू की टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। सो नाउ इट मीन्स वी ऑल्सो हैव टू चेंज दिस डेल्टा क्यू टर्म इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, और एंट्रोपी की टर्म्स में हम इसको पहले लिख चुके हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा क्यू बाई टी की वैल्यू आ गई है डी एस माइनस डी एम वन एस वन प्लस डी एम टू एस टू। ओके, तो हमने यहाँ पे इसको पुट कर देना है। तो देखो पहली टर्म वही है, दूसरी भी वही है, तीसरी वही है, और यहाँ पे हमने डेल्टा क्यू बाई टी की वैल्यू को पुट कर दिया है, और डेल्टा क्यू बाई टी की वैल्यू है डी एस माइनस डी एम वन एस वन प्लस डी एम टू एस टू इंटू टी नॉट। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को हम निकाल के इन तीनों ब्रैकेट्स में, जो पहली तीन ब्रैकेट्स है उसमें अरेंज कर देते हैं। जैसे ये जो टर्म है ये पहली ब्रैकेट में चली जाएगी, ये वाली, ये जो टर्म है ये यहाँ पे आ जाएगी, और ये जो टर्म है इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। अब देखो जरा नीचे, डी एम वन एच वन इंटू टी नॉट एस वन, और डी एम के साथ यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एम वन एम एस वन है ये, प्लस वी वन स्क्वेयर जी जेड। इसी तरह से दूसरी टर्म आ गई, और इसी तरह से ये तीसरी टर्म भी आ गई। तो ये जो है डब्ल्यू मैक्सिमम की वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके, तो ये दोबारा से मैंने ये दोनों इक्वेशंस लिखी हैं, दोबारा से दोनों इक्वेशन हैं, जिसमें पहले ये डी एम वन डी एम टू और ये चेंज इन, ये कंट्रोल वॉल्यूम की एनर्जी चेंज है, और ये जो था डेल्टा क्यू बाई टी इंटू टी नॉट की वैल्यू थी। ओके, तो ये जो है अब जब हमने इनको रीअरेंज करा है तो हमारे पास देखना ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू, इसके इक्वल है जो भी मास एंटर कर रहा है उसका एंट्रोपी एंथैल्पी माइनस टी नॉट एस वन। देखो बहुत आसान है इसको रिमेंबर करना, एच माइनस टी नॉट एस, और बाहर मास है, प्लस काइनेटिक एनर्जी की टर्म हो गई, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की टर्म हो गई, माइनस क्या करना है डी एम टू, सेम वैल्यूज हैं, एच टू माइनस टी नॉट एस टू प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू प्लस जी जेड टू, और माइनस में ये तो बेसिकली जो टर्म एंटर और लीव कर रही हैं उसकी वैल्यू हुई, और बाकी लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म में क्या है, सिमिलर वैल्यू है। अगर आप ध्यान दो तो हमारे पास है डी यू, यू जो है यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर है, उसके पास सिंथैल्पी नहीं होगी, कोई फ्लो वर्क की टर्म नहीं है, माइनस ई नॉट एस प्लस एम वी स्क्वायर बाय टू प्लस एम जी जेड। ओके, तो ये आ गई। तो अगर मैं इसको पूरा इफ आई वांट आई कैन राइट दिस टर्म इन अनदर वे आल्सो, अनदर वे में कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ अभी। आई कैन इंसर्ट ए स्लाइड हेयर। ओके,
तो हमारे पास वैल्यू है डेल्टा डब्ल्यू मैक्स। तो डब्ल्यू मैक्स, अगर मैं टोटल वर्क निकाल रहा हूँ तो डब्ल्यू मैक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास M1, ओके, इंटू H1 माइनस T0 M S1. So actually this is entering, so I can write it as Mi also. This is Mi. So HI plus Vi square by 2 plus EZI. ओके, ये एंटरिंग की टर्म है, माइनस लीविंग की टर्म लिख लो, ये एम डॉट लगा दो इसके ऊपर, HE माइनस T0 SE प्लस VE स्क्वेयर बाय 2 प्लस GZE प्लस, ओके, अब जरा ध्यान देना पीछे क्या लिखा था, DU। ओके, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कैसे करना है इसको। इट विल बी इक्वल टू, अगर मैं माइनस ले लेता हूँ यहाँ पे, सपोज आई टेक इट एज माइनस, सो इट विल बी मास इन द कंट्रोल वॉल्यूम M2, मतलब बाद में जो कंट्रोल वॉल्यूम का मास है वो M2 है, मल्टीप्लाइड बाय U2 माइनस T0 S2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस M1 TV U1 माइनस T0 S1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1। तो ये पूरी इक्वेशन है एक्चुअली में, क्योंकि मास इन द कंट्रोल वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है ये ध्यान रखना आप, कंट्रोल वॉल्यूम का मास चेंज होगा क्योंकि हमने इसको स्टेडी फ्लो नहीं माना हुआ है। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। किसी को कोई पूछना है इसमें, कुछ पूछना है तो बताओ। हाँ, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? नो सर। ओके, ऑल राइट। तो अब देखो, अब इसको देखते हैं आगे। आगे क्या है, रिवर्सिबल वर्क इन ए स्टेडी फ्लो प्रोसेस। अब देखो, स्टेडी फ्लो प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम। अब जब हम स्टेडी फ्लो प्रोसेस की बात करेंगे तो स्टेडी फ्लो प्रोसेस में क्या चीज़ नहीं होगी। स्टेडी फ्लो प्रोसेस का सिंपल सा मतलब है कि जितना मास एंटर कर रहा है उतना ही मास लीव कर रहा है, और जो कंट्रोल वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज नहीं होगा अब। ओके, क्योंकि स्टेडी फ्लो है तो इसका मतलब सीधा सीधा जो है, ये जो टर्म होगी, सॉरी, एक मिनट, हाँ इसको देखो, एक मिनट, ओके, नाउ यू सी इट हियर। अच्छा, अब इसको देखो ध्यान से, ये पिछली इक्वेशन है जो जो हमने मैक्सिमम वर्क निकाला था अनस्टेडी फ्लो के लिए। अनस्टेडी फ्लो मतलब जिसमें कंडीशन स्टडी नहीं थी, और मास जो एंटर कर रहा था, मास जो बाहर जा रहा था वो बराबर नहीं था, और कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर भी मास चेंज हो रहा था। तो ये वो इक्वेशन है जो सबसे पहले यहाँ पे शो की हुई है, DW मैक्स। ये मैक्सिमम वर्क की इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में जो सारी वैल्यूज हैं, अब अगर मैं ये देखूं तो ये अनस्टडी के लिए है। अब हमारे पास बात आ गई स्टडी फ्लो की, ये स्टडी फ्लो की बात कर रहा हूँ मैं। तो स्टडी फ्लो में क्या होगा, जो मास है वो बराबर हो जाएगा। यू नो, इफ दिस इज दी ओपन सिस्टम, तो जितना मास एंटर कर रहा है DM1, तो सेम मास DM1 विल लीव, इसलिए यहाँ पे DM1 और DM2 को DM लिख दिया है। और जब मास सेम एंटर कर रहा है और सेम बाहर जा रहा है, तो अंदर कंट्रोल वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं होगा। तो इसके अंदर कंट्रोल वॉल्यूम में या सिग्मा में जो कंट्रोल सरफेस है उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, बिकॉज इट इज स्टेडी स्टेट। तो इसलिए ये पूरी की पूरी टर्म जो है, थर्ड टर्म जो है, ये जीरो हो जाएगी। ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो गई। तो हमारे पास मैक्सिमम वर्क की इक्वेशन क्या रह गई, डेल्टा डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू DM H1 माइनस T0 S1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 माइनस H2
ये पूरा का पूरा जो है एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब टोटल मास कितना हो गया? और टोटल मास फ्लो रेट की बात अगर हम करें तो इसको इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और हमारे पास जो डब्ल्यू मैक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी H1 माइनस टी नॉट एस वन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, मास माइनस H2 टी नॉट S2 एम वी स्क्वेयर बाय टू प्लस एम जी जेड टू। तो ये, और एक चीज ध्यान रखना, ये जो टर्म है इसको क्या बोलते हैं? ये कीनन फंक्शन है। कीनन फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ओके, और इसमें और कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। और ये देखो दोबारा से वही लिख दिया, देखो क्या था, H माइनस टी नॉट एस, ये जो पहली टर्म थी ये क्या है? बी है। तो क्योंकि ये H1 माइनस टी नॉट एस है तो इसलिए इसको मैंने नेक्स्ट इक्वेशन में B1 बोल दिया। तो यहाँ पे B1 प्लस काइनेटिक एनर्जी टर्म प्लस पोटेंशियल एनर्जी टर्म माइनस B2 प्लस काइनेटिक एनर्जी टर्म एंड पोटेंशियल एनर्जी टर्म एट द एग्जिट। तो बेसिकली ये मेरे पास आ गया मैक्सिमम वर्क का फार्मूला। और यहाँ पे इस पूरी की पूरी टर्म को, जो कि कीनन फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, उसको मैंने जाई से रिप्रेजेंट किया है, जाई 1 माइनस जाई 2। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी फंक्शन फॉर द स्टेडी फ्लो प्रोसेस विच इज गिवन बाय दिस वैल्यू। ओके, बी प्लस एम बी स्क्वायर बाय टू प्लस एम जी जेड। जस्ट वेट फॉर मिनट, मुझे चार्जर लेना पड़ेगा, होल्ड करो। Okay, so can you hear me? Yes, sir. Okay, so xi is the availability function for the steady flow process। यहाँ पे ये आ गया। और अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पे ये ओके ऑन यूनिट मास बेसिस पे कर दिया। पहले जो है मास कंसिडर किया हुआ था, अब यूनिट मास बेसिस पे करेंगे तो मास कैंसिल हो जाएगा। तो ये यूनिट मास बेसिस पे डब्ल्यू की वैल्यू है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे दोनों केसेस में जो ऊपर वाली इक्वेशन है और नीचे वाली इक्वेशन है, इसमें W को कैपिटल दिया हुआ है, स्मॉल नहीं होना चाहिए नीचे वाली इक्वेशन में? शुडंट इट बी स्मॉल? W स्मॉल? ओके, कोई बता सकता है? सर इक्वेशन ही यूनिट मास बेसिस के लिए है सर। हाँ तो W छोटा नहीं होना चाहिए, जैसे एंथैल्पी कैपिटल H और स्मॉल h लिखते हैं। हाँ तो मास तो यूनिट है ना सर, डिफाइंड हो चुका है। अच्छा, अगर मास नहीं लेते तो W छोटा कर देते? यस सर, पर कौन यूनिट बोल रहा मास है ये अगर होगा। बताओ, किसने बोला बताओ, पहले अपना नाम तो बताओ। सर संदीप। संदीप? ओके यस सर। संदीप। अच्छा ये बताओ, W पाथ फंक्शन है या पॉइंट फंक्शन है? सर डब्ल्यू पाथ फंक्शन है सर। हाँ तो पाथ फंक्शन तो प्रॉपर्टी नहीं होता, तो हाँ प्रॉपर्टीज सर। को ही हम कैपिटल और स्मॉल में लिखते हैं। ओके, वो उसमें मास का तो कोई मतलब नहीं है। ओके सर। ओके, तो यहाँ पे W छोटा लिखो या बड़ा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये बात समझ में आ गई है। तो जब भी आपने मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करना है, ये इक्वेशन किसकी है? ये इक्वेशन है मैक्सिमम वर्क की। ओके, ये मैक्सिमम वर्क की इक्वेशन है, रिवर्सिबल वर्क की इक्वेशन है। ओके, और आपको ये फंक्शन भी याद रखना है, अवेलेबिलिटी फंक्शन। अब भी इसके बारे में बात नहीं हुई है, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। अभी मैक्सिमम वैल्यू की बात कर लो, मैक्सिमम वर्क किसी भी ओपन सिस्टम के लिए ये इक्वेशन याद रखनी है। कुछ नहीं है, आपको मालूम है जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते थे तो वर्क कैसे कैलकुलेट करते थे वहां पे? अगर हम क्यू को जीरो मान लें, क्यू को जीरो मान लें, तो क्या होता? वहां पे इक्वेशन आती थी हमारे पास, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू एस इज इक्वल टू डी एच प्लस डी के ई प्लस डी पी। यही इक्वेशन होती थी ना?
अब अगर मान लो उसमें हम डेल्टा क्यू को 0 मान लेते हैं फॉर द टाइमिंग, तो डब्ल्यू मैक्सिमम की वैल्यू माइनस को उधर ले जाएंगे तो क्या होता था, H1 माइनस H2 प्लस काइनेटिक एनर्जी का चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, यही था ना। अब इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई है, वो एक्स्ट्रा टर्म क्या है, माइनस T0 S1 और माइनस T0 S2, बस इसको याद करने का यही तरीका है और कुछ नहीं है। अगर आपको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन याद है, उसमें से डेल्टा क्यू को काट दो और यहाँ पे माइनस T0 S1 पहली उसमें और दूसरी उसमें ऐड कर दो बस, और कुछ नहीं है। ये मैक्सिमम वर्क का फार्मूला है। ठीक है, बाकी अब ये जो कीनियन फंक्शन है, अवेलेबिलिटी फंक्शन है, ये तो चीज़ें सब समझ में आती रहेंगी, बट सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि डब्ल्यू मैक्सिमम का फार्मूला क्या है। ये बहुत ही आसान तरीका है इसको याद रखने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक हमने बात की, तीन तरह के सिस्टम की बात कर ली है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था रिवर्सिबल वर्क बाय एन ओपन सिस्टम एक्सचेंजिंग हीट ओनली विद सराउंडिंग, माइंड इट, यहाँ पे ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सराउंडिंग्स के साथ एक्सचेंज कर रहा है। अभी एक टॉपिक ऐसा भी आएगा जिसमें सराउंडिंग के साथ साथ ये जो है बाकी और भी रिजर्वायर हो सकती हैं। अभी सिर्फ सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज हो रहा है, तो अभी बाकी रिजर्वायर जिससे हीट ट्रांसफर हो रही है वो हमने एज्यूम नहीं किया है इस टॉपिक के अंदर। तो इसमें हमारे पास फार्मूला आया था ये वाला, ये डेल्टा डब्ल्यू मैक्सिमम का फार्मूला आया था। देखो इसमें भी वही टर्म है, H1 T0 S1 V1 स्क्वायर जी जेड, सिर्फ ये मासिस से मल्टीप्लाई और कर दिया है, क्योंकि ये स्टडी फ्लो नहीं है इसलिए मासिस अलग अलग है यहाँ पे। और उसके बाद कंट्रोल वॉल्यूम में भी चेंज हो जाएगा, तो इसलिए ये टर्म आ गई है, और कुछ नहीं है। और जब हम ओपन सिस्टम करते हैं तो ये टर्म जीरो हो जाती है, बस ये याद रखना है आपने। अब बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। ये वही इक्वेशन जो अभी आपको बताई, ये वो वाली इक्वेशन है जो अभी आपको दिखा रहा था मैं, जनरल इक्वेशन है सबकी। तो अब जब क्लोज सिस्टम होगा तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा, कोई मास बाहर से आएगा नहीं, कोई मास बाहर जाएगा नहीं, तो पहली दोनों टर्म जो है जीरो हो गई। तो ये देखो क्लोज सिस्टम के लिए DM1 और DM2 जीरो हो गया। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली द थर्ड टर्म। ये टर्म है हमारे पास माइनस डी यू माइनस T0S प्लस एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो है हो गई। और अगर मैं इसमें ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को कंबाइन कर देता हूँ तो दिस बिकम्स एनर्जी। तो इसको मैंने ई से रिप्रेजेंट कर दिया, तीनों टर्म्स को जोड़ के। ठीक है, एनर्जी में तीनों चीजें होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो, ये रहा। तो डब्ल्यू मैक्सिमम क्लोज सिस्टम के लिए क्या हो गया, E1 माइनस E2। ओके, तो माइनस साइन था तो डेरिवेटिव करेंगे तो E2 जो है माइनस में चला जाएगा, तो E1 माइनस E2 माइनस T0 S1 माइनस S2, और कंबाइन कर दिया तो E1 माइनस T0 S1 माइनस E2 T0 S2। अब देखो काफी सिमिलरिटी है पिछली वाली इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, सिर्फ इतना फर्क है, डब्ल्यू मैक्सिमम जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे इट इज इक्वल टू, अगर ई को लिखूंगा मैं यहाँ पे तो वो आएगा U1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस G Z1 माइनस T0 S1, ये आ गया, माइनस यही वैल्यू जो है U2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस G Z2 माइनस T0 S2, ये वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास। ठीक है, तो पिछली वाली टर्म में क्या था, पिछली वाली में एच की जगह यू की जगह पे सिर्फ एच था, यहाँ पे यू हो गया। बाकी सारी इक्वेशन देखो सेम है, अभी दिखा देता हूँ आपको। ये पिछली वाली इक्वेशन थी, ये स्टडी स्टेट के लिए थी, सिर्फ इस एच को आपने जैसे ही यू से रिप्लेस कर दिया तो ये क्लोज सिस्टम के लिए हो गई। ओके, ये आ गई मेरे पास क्लोज सिस्टम के लिए। ये तब आ गई जब मैंने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज को निग्लेक्ट कर दिया। देखो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, यू आर लेफ्ट विद U1 माइनस T0S माइनस U2 माइनस T0 S2, तो ये आ गया। तो डब्ल्यू मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ गई, U1 माइनस T0 S1 माइनस U2 माइनस T0 S2। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. ओके। तो अब बात करते हैं कि अब यूजफुल वर्क कितना है। ये तो मैक्सिमम वर्क हमें मिल रहा है कि एक सिस्टम हमें इतना मैक्सिमम वर्क दे रहा है,
लेकिन क्या ये सारा का सारा मैक्सिमम वर्क हमें अवेलेबल भी है या नहीं है, अब उसकी बात करते हैं, वेदर इट इज अवेलेबल टू अस और नॉट। ये देखो अब यूजफुल वर्क। अब देखो पहले, सबसे पहले डायग्राम को देखो। डायग्राम में दे रखा है ये हमारे पास सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम की वॉल्यूम क्या है, V1 है। अब जब ये सिस्टम जो है एक्सपेंड हुआ, जब मतलब वर्क दे रहा है यूजफुल, जब ये वर्क देगा तो कोई भी जो बाउंड्री होगी वो एक्सपेंड करेगी, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वर्क ले रहा है, एक्सपेंड कर रही है बाउंड्री तो वर्क दे रहा है, तो वॉल्यूम जो है V2 हो गई। क्लियर है। सराउंडिंग्स किस टेम्परेचर और प्रेशर पे है, P0 और T0 पे है। और ये यहाँ पे दे रखा है, ये इनिशियल बाउंड्री है, ये फाइनल बाउंड्री है, ये दोनों बाउंड्री दे रखी है। और ये कौन सा केस ले रखा है, वर्क डन बाय क्लोज सिस्टम इन पुशिंग आउट द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब ये है कि जब क्लोज सिस्टम की बाउंड्री इनलार्ज होती है, तो उसको इनलार्ज होने के टाइम पे उसको कुछ वर्क बाउंड्री पे करना पड़ता है ताकि वो एक्सपेंड हो सके। जैसे हम एक पिस्टन सिलेंडर का की बात करते हैं, तो अगर हम पिस्टन सिलेंडर के केस में भी देखें तो इनिशियल बाउंड्री तो ये है, ओके। और जब ये पिस्टन बाहर मूव करेगा, जब ये यहाँ पे जाएगा, तो क्या होगा, बाउंड्री ये एक्सपेंड हो जाएगी। और यहाँ पे प्रेशर कौन सा एक्ट कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर P0 एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब इस P0 को ओवरकम करके ही बाउंड्री मूव हो सकती है। तो कुछ वर्क जो है इसको पिस्टन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं जरा इसमें क्या लिखा हुआ है। ऑल द वर्क W of the system with a flexible boundary would not be available for delivery since a certain portion of it would be spent in pushing out the atmosphere। तो कुछ जो है वर्क एटमॉस्फेयर को पुश आउट करने में यूज हो जाएगा। अब देखो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द यूजफुल वर्क इज डिफाइंड एज द एक्चुअल वर्क डिलीवर्ड बाय ए सिस्टम लेस द वर्क परफॉर्म्ड ऑन द एटमॉस्फेयर, ओके। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास यूजफुल वर्क की। एक्चुअल वर्क जो उसने डिलीवर करना था, उसमें से हमने जो है एटमॉस्फेयर के ऊपर जो वर्क करना पड़ा बाउंड्री को मूव करने के लिए, उसको माइनस कर देंगे। तो इफ V1 and V2 are the initial and the final volumes of the system and P0 is the atmospheric pressure, then the work done on the atmosphere is equal to P0 into V2 minus V1। ये वैल्यू जो है, जो P0 into final volume माइनस V1 इनिशियल वॉल्यूम, तो ये एक तरह से पीडी वर्क ही है। तो ये जो पुश आउट करने में, ये जो वर्क लगा, ये पुश आउट करने में लगा। ये जो वर्क है, दिस इज एक्चुअली वर्क डन अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर, दिस इज वर्क डन ऑन द एटमॉस्फेयर। तो ये वर्क जो है हमें अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि ये तो एटमॉस्फेयर को पुश करने में लगा है। तो अगर हमारे सिस्टम में एक्चुअल वर्क W एक्चुअल मिल रहा है, तो उसमें से जो मतलब इतना प्रोड्यूस हुआ है क्लोज सिस्टम के अंदर, तो उसमें से इतना जो है खत्म हो गया। ये वर्क, ये सिस्टम को वर्क करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर को मूव करने के लिए। तो हमें सिर्फ यूजफुल वर्क जो मिलेगा यही मिलेगा। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले अभी एक मैक्सिमम वर्क की डेरिवेशन की थी। डब्ल्यू मैक्सिमम क्या था क्लोज सिस्टम में, डब्ल्यू मैक्सिमम की वैल्यू थी हमारे पास U1 माइनस P0 S1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 माइनस U2 माइनस P0 S2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2, ठीक है। तो अगर अब मैंने मैक्सिमम वर्क के हिसाब से यूजफुल वर्क निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, W एक्चुअल को रिप्लेस कर दूंगा W मैक्सिमम से। यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दूंगा। तो देखते हैं आगे क्या किया हुआ है। ये लो, अगर मैं मैक्सिमम यूजफुल वर्क निकालना चाहता हूँ कि मैक्सिमम यूजफुल वर्क कितना है, तो W मैक्सिमम विल बी इक्वल टू U स्टैंड्स फॉर यूजफुल और M मैक्सिमम स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम। तो W मैक्सिमम में से मैंने जो ये वर्क डन अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर है, इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दूंगा मैं। और डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा W मैक्सिमम माइनस P0 dV हो जाएगा, और कोई चेंज नहीं है। अब देखो, अब अगर मैं एक स्टेडी फ्लो सिस्टम की बात करता हूँ, ओके। स्टेडी फ्लो सिस्टम कौन सा है, ओपन है। तो इसकी जो कंट्रोल वॉल्यूम होती है, इसकी शेप चेंज नहीं होती, इसकी शेप चेंज नहीं होती, इसकी वॉल्यूम में चेंज नहीं आता।
मतलब इसके लिए बाउंड्री की वॉल्यूम का चेंज डीबी की वैल्यू 0 है। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो मैक्सिमम यूजफुल वर्क है ओपन सिस्टम में और जो मैक्सिमम वर्क है वो दोनों सेम हो जाएंगे। ये रहा, दोनों सेम है। एज नो वर्क इज डन ऑन द एटमॉस्फियर, क्योंकि वॉल्यूम सिस्टम की चेंज ही नहीं हो रही है। तो मैक्सिमम वर्क और मैक्सिमम यूजफुल वर्क दोनों बराबर हैं। ओके, तो मैक्सिमम वर्क की वैल्यू कितनी थी? मैक्सिमम वर्क की वैल्यू थी m1 या mi, जो भी लेना चाहते हो, मतलब जो मास एंटर कर रहा है। लेकिन ओपन सिस्टम में जितना मास एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। तो मैं सिर्फ इसको m ही कह देता हूँ। m प्लस में h1 माइनस E0 S1 प्लस V1² बाय 2 प्लस GZ1 माइनस m H2 माइनस T0 S2 प्लस V2² बाय 2 प्लस GZ2। ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ठीक है। अगर अनस्टेडी फ्लो की बात करते हैं, जो सबसे पहला टॉपिक हमने करा था, तो अनस्टेडी में कोई ना कोई ऐसा पोर्शन हो सकता है। देखो उसमें हमने हालांकि अभी अनस्टेडी में ओपन सिस्टम भी हो सकता है, क्लोज सिस्टम भी हो सकता है, तो उसके केस में वॉल्यूम जो है ना वो चेंज हो सकती है अनस्टेडी में। हेंस व्हेन ए सिस्टम एक्सचेंजिंग हीट ओनली विद द एटमॉस्फेयर, द मैक्सिमम यूजफुल वर्क बिकम्स, जो मैक्सिमम वर्क की वैल्यू है उसमें से मैं P0 इंटू डी माइनस कर दूंगा। तो ये देखो, ये इक्वेशन थी सबसे पहली डी डब्ल्यू मैक्सिमम की, सबसे पहले टॉपिक में, अगर याद हो ये वाली इक्वेशन। ये क्या है? ये कंट्रोल वॉल्यूम का है चेंज। ये एंटर लीव कर रहा है, ये एंटर कर रहा है। तो ये डी डब्ल्यू मैक्सिमम था। अब यूजफुल निकाल लेते हैं। यूजफुल निकालने के लिए हमें ये टर्म जो है माइनस करनी पड़ेगी। अब पी नॉट डी वी ये कहाँ पे आएगा? ये इस लास्ट टर्म के साथ जुड़ जाएंगी ये दोनों, क्योंकि ये कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर का प्रेशर है। कंट्रोल वॉल्यूम जो फैल रही है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये पी नॉट वी की टर्म आ गई है बस। ओके, इसका डेरिवेटिव है यहाँ पे। तो कुछ नहीं है, और ये इक्वेशन बन गई यूजफुल वर्क की। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, अनस्टेडी स्टेट आएगी नहीं। तो आपको स्टेडी स्टेट के बारे में बताना चाहिए। स्टेडी स्टेट आपको बता दिया है। स्टेडी स्टेट में तो ये टर्म होती ही नहीं है। तो मैक्सिमम यूजफुल वर्क और यूजफुल वर्क दोनों बराबर हैं। ओके, अब करते हैं क्लोज सिस्टम की बात। अब मैंने क्या लिखा था? ये इक्वेशन एम है। अब जब मैं क्लोज सिस्टम लूंगा तो इक्वेशन एम को क्या होगा? ये वाली टर्म नहीं होगी, ये वाली टर्म नहीं होगी, दोनों कट जाएंगी, क्योंकि कोई एंट्री नहीं है, कोई एग्जिट नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ बचेगी ये लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, ये वाली। तो ये लो, ये आ गई। ये मैक्सिमम यूजफुल वर्क का एक्सप्रेशन आ गया। आपको ध्यान होगा इक्वेशन क्या लिखी थी? ये देखो, पहले ये टर्म नहीं थी। पहले यूजफुल वर्क में सिर्फ इतना था, डब्ल्यू मैक्सिमम। डब्ल्यू मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, डब्ल्यू यूजफुल की नहीं। डब्ल्यू मैक्सिमम में था E1 माइनस T0 S1 माइनस E2 माइनस T0 S2। सिर्फ इतना था। अब इसमें एक टर्म और जुड़ गई है, ये वाली। ओके, क्योंकि अब जब मैं यूजफुल वर्क कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं, यूजफुल वर्क के लिए, तो ये टर्म ऐड हो जाएगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को निगलेक्ट कर देते हैं तो आ जाएगा U1 माइनस U2 प्लस P0 V1 माइनस V2 माइनस T0 S1 माइनस S2। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो बता दो। देखो अभी पिछला जो टेस्ट हुआ था, पिछले टेस्ट में मैंने हालांकि ये टॉपिक आपको पढ़ा दिए थे, लेकिन इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं दिया था। आज मैंने दोबारा पढ़ाए हैं ये टॉपिक। ठीक है। तो अब की बार जो टेस्ट होगा, आज 21 तारीख होगी, अब की बार का टेस्ट होगा कोई ये 11-12 अक्टूबर के आसपास। तो ये इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। पिछले के ऊपर आएंगे, लेकिन पिछले के ऊपर कम आएंगे, लेकिन इसके ऊपर जरूर आएंगे, पर्टिकुलरली ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम दोनों के ऊपर। तो आज जो मैंने कवर किया उसमें से कुछ अगर आपको पूछना हो तो बताओ। ये सारा का सारा पी के ना की बुक में से लिया है।
हाँ बताओ। बोलो। ओके, शिवम कह रहा है कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, 2 मिनट रुको, मैं अभी जरा अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों की।